In last lecture, we did the rights of partners on or after the dissolution of the firm. उसमें हमने कौन कौन से राइट्स देखे थे? फर्स्ट, right to have the business wound up, right? Means use the property of the partnership firm to pay off the partnership liabilities. So to wind up the business. Second, right to have the debts of the firm settled out of the property of the firm. Means property of the firm should be used to pay off the liabilities of the firm and not, right, for the payment of the personal liabilities of the partners. First preference or first utilization of the partnership property is towards partnership debts, and at the same time, right, first utilization of the personal assets, personal properties towards personal debts. उसके बाद था right to personal profits earned after dissolution. If some partner has purchased goodwill on a dissolution of the firm, right, that partner has a right to use that goodwill, use the name of the firm, and to earn the profits. Then, and he is entitled to retain those profits. Right to retain the premium on premature dissolution. If there is a partnership for a fixed period of term, you are admitted a new partner for a given period and you have charged him premium for that purpose, and partnership get dissolved before the expiry of such term, in that case such partner is entitled to, right, get refund for the premium paid on unexpired period. Remaining period का premium उसको refund मिल जाएगा. However, right, it is subject to the contract between the partners. If partners has admitted him a partner with premium and the contract provides that he will not get refund in any case, right, even in case of premature dissolution, he will not get interest, he will not get refund of his premium. Or if partnership prematurely dissolve होती है because of death of any of the partner, in that case it is not the mistake of any of the partner. In such case, such partner will not get refund for the premium paid. And if partnership prematurely dissolve होती है because of the misconduct of the person who had premium, in that case he is not entitled to get the refund. ठीक है? Then rights, right, to return, right, rights where partnership contract can be rescinded for the fraud or misrepresentation. When partners give up the partnership contract because of the fraud or misrepresentation of any of the partner, in that case remaining partners, means partners other than the fraudulent partner, has rights. One, right of lien on the surplus assets. जो assets थर्ड पार्टीज के liabilities पे करने के बाद जो assets बचेंगे, that will be used to pay off the capital, right, that surplus balance or surplus assets, right, पे remaining partners का लेन रहेगा, मतलब उनका अधिकार रहेगा उस पे. Then right of subrogation. If a partner has paid liability of partnership from his personal funds, then he will replace that creditors. He will be paid along with other creditors. He will be treated as a creditor for that amount only. Means he will substitute the creditor for the firm for that amount. Such partner will be treated as creditor. उसको कैपिटल के टाइम वो अमाउंट पे नहीं करनी है, क्रेडिटर्स को जब पहले पे करते हो तभी पेमेंट करनी होगी. That right is called as right of subrogation because partner steps into the shoes of the creditors. And the last one, it is a right to be indemnified in case of fraud, right? अगर कोई loss होता है तो other partners have right to get indemnified. And last right था right to restrain partners from use of the firm name or a property during that period of time. Dissolution का जो winding up की process है, during that period of time, right, other partners or the partners cannot carry on a business in the name of the firm, or they cannot use the property of the firm for their personal benefit, right? That is a right of a partner to, right, restrain other partners from using the name of the firm, right, for their personal benefit or using the property of the firm for their personal benefit unless otherwise agreed. अगर वैसे agree हुआ था कोई partner, right,
प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता है. इन दैट केस, राइट, that partner has a right to use, other partners cannot restrain him. But in the absence of the contract, any partner can restrain other partners from using the property of the firm for their personal use during the period of winding up. Then winding up के बाद वैसे भी प्रॉपर्टी सब क्या हो जाएंगी, सेल हो जाएंगे. Then there are two liabilities. Liabilities of a partner on dissolution. यहाँ पे rights देखिए, अब liabilities देखना है. Liabilities for the acts of the partner done after dissolution. Try to understand, right? Dissolution होने के बाद are the partners liable for each other's acts. यहाँ पे firm dissolve हो गई and इसके बाद जो acts रहेंगे इसके लिए वो responsible रहेंगे क्या? That is a question. क्या लिखा है ध्यान देना. In order to dissolve partners, in order to absolve partners of a liability for any act done after the dissolution of the firm, फर्म डिसॉल्व होने के बाद जो भी एक्ट्स रहेंगे बाकी पार्टनर्स के, अगर उन एक्ट से आपको खुद को एब्सॉल्व करना है, इन दैट केस पब्लिक नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन इज अ मैंडेटरी, राइट. इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व पार्टनर्स ऑफ ए लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ए पब्लिक नोटिस मस्ट बी गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन. रिटायरमेंट के टाइम भी पब्लिक नोटिस जरूरी है, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी के टाइम पब्लिक नोटिस जरूरी नहीं है. बट फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म डिसॉल्व हुई है इसकी पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है. अदरवाइज पार्टनर्स विल बी हेल्ड लायबल टू ईच अदर, राइट. इफ this is not done, the partners continue to be liable as such, right, to the third parties for any act done by them, right, any one of them after the dissolution. अगर डिसोल्यूशन की नोटिस नहीं दी जाती है एंड डिसोल्यूशन के बाद सम ऑफ द पार्टनर्स लाइक टेक एक्शन विद द थर्ड पार्टीज, इट विल बी लाइक वो एक्शन ऐसे मानी जाएगी जैसे फर्म डिसॉल्व ही नहीं हुई है. लाइक डिसोल्यूशन के पहले, right, an act of the partner used to bind other partners, similar criteria even after dissolution लगेगा because you had not given the public notice of the dissolution. तो वही लिखा है, if the public notice is not given, the partners continue to liable, right, as to third parties for any, right, third parties for any act done by any one of them even after dissolution. Further, in such a case, the act of a partner done after the dissolution will be deemed as act done before dissolution. For such acts ऐसे माना जाएगा कि फर्म डिसॉल्व ही नहीं हुई थी. जैसे before dissolution, right, act of a partner binds other, even after dissolution their acts will be, right, bind other partners. इसलिए public notice देना mandatory है. Then the following, however, are not liable. मतलब ये पार्टनर्स या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट लायबल, राइट, फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड नो नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन नीड टू बी गिवन विथ रिस्पेक्ट टू देम. लाइक स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, हमने डिसीज पार्टनर डेथ के टाइम में देखा था. डिसीज पार्टनर लीगल हेयर्स और डिसीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर not required to give public notice, right, because they are not held liable after the death, right. They are like डिसीज पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने का कोई सवाल ही नहीं आता बिकॉज उसकी डेथ हुई है. इवन उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या उसके लीगल हेयर्स को भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है बिकॉज फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डेथ, राइट, ही गेट्स एब्सॉल्व फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज आफ्टर हिज डेथ. उसके डेथ के बाद के जो एक्ट्स रहेंगे पार्टनर्स के, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी, उसके लीगल हेयर्स और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, लायबल नहीं रहते. सो इवन आफ्टर डिसोल्यूशन किसी पार्टनर की डेथ होती है एंड उसके वजह से अगर फर्म डिसॉल्व होती है, इन दैट केस, राइट, द एस्टेट ऑफ सच डिसीज पार्टनर विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन. हमने इसमें क्या देखा था कि अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते हो डिसोल्यूशन की and some of the partners acts with the third parties like in the name of the firm, in the ordinary course of the business, because third parties are not aware about your dissolution, try to understand. And some of the partner acts with third parties in the name of the firm, right, then
दूसरा, राइट, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, अगर ऐसे है तो उसके एक्शंस रिमेनिंग पार्टनर्स को भी लायबल रखेंगे एज इफ फर्म कंटिन्यू है, because third parties are not aware about dissolution because you are not given public notice. But deceased partner, right, his estate, his legal representatives or his legal heirs are never ever responsible. Death के बाद भी नहीं, even right, dissolution के बाद भी नहीं. Insolvent partner, same rule insolvent partner के लिए भी था. Insolvent partner is not required to give public notice of his insolvency because the order of the court itself is like a public notice, and right, he is not held liable for the acts of the partners after his insolvency. Thus, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है एंड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व होती है, हमने देखा है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन में, और लाइक हमने देखा था कि ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंट इवेंट, तो डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इफ नथिंग इज एग्रीड अपॉन द पार्टनर्स, क्या होती है, लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. एंड ऐसे केसेस में अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो डिसीज पार्टनर एंड इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, right, are not held liable for all the acts of remaining partners done after the dissolution. The sleeping or dormant partner who retires, obviously, right, ऐसे पार्टनर्स, वैसे भी स्लीपिंग पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर्स, उनके रिटायरमेंट के बाद, इवन इंसॉल्वेंस डिसोल्यूशन के बाद भी, राइट, दे आर नॉट लायबल बिकॉज एनीवेज थर्ड पार्टीज नेवर न्यू अबाउट देयर प्रेजेंस इन द पार्टनरशिप. सो इस प्रोविजन में क्या बोलना है कि अगर, राइट, फर्म डिसॉल्व होती है बिकॉज ऑफ एनी ग्राउंड, फर्म शुड गिव द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन. अगर फर्म नोटिस नहीं देती है, पब्लिक नोटिस नहीं देती है डिसोल्यूशन की, तो राइट, ऑल अदर पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर्स. भले ही डिसोल्यूशन के बाद दे आर नॉट पार्टनर्स, बट ऐसे माना जाएगा कि फॉर विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टीज फर्म कंटिन्यूड है, ऐसे माना जाएगा बिकॉज थर्ड पार्टीज आर नॉट अवेयर अबाउट द डिसोल्यूशन. So the partners will be liable even after the dissolution for the acts of one of the partners with third parties. अगर आपको ऐसे चीजों से absolve करना है, you don't want to take up such liabilities, then make sure the firm has given public notice of dissolution. Even if public notice नहीं दी है तो दो पार्टनर्स कभी भी liable नहीं रहेंगे. एक, राइट, आपका डिसीज पार्टनर्स के रियल उसकी स्टेट, इंसॉल्वेंट पार्टनर, they are never ever held liable. तो public notice दे दो या ना दो, right, they are not held liable. Then continuing authority of the partners for the purpose of winding up. कल मैंने बोला winding up takes a period like 2 months, 3 months, 4 months. सेम डेट फर्म डिसॉल्व हो गई और उसी दिन वाइंड अप हो गई, ऐसे नहीं होता. इट टेक्स टाइम टू रियलाइज द एसेट एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज. इस पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस करोगे, कौन से ट्रांजैक्शंस रहेंगे, हम एसेट सेल करेंगे एंड लायबिलिटीज पे करेंगे, एंड टू सेल दोस एसेट्स वी मे इंकर सम एक्सपेंसेस. तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस के लिए एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर ईच अदर. they are liable towards each other because these are the transactions of the firms only for the purpose of winding up of the firm. भले ही मैं बोलता हूँ आपने पब्लिक नोटिस भी क्यों ना दी हो आपके डिसोल्यूशन की, फिर भी इन एक्ट्स के लिए, इन ट्रांजैक्शंस के लिए पार्टनर्स आर लायबल टू ईच अदर. क्या लिखा है, ध्यान देना. आफ्टर द डिसोल्यूशन अगर वो एक्ट्स नहीं होते तो फर्म कंप्लीटली वाइंड अप होगी ही नहीं, इसलिए दोस एक्शंस आर नेसेसरी. उसमें क्या आएगा कि यू विल अपॉइंट ए लाइक ए गवर्नमेंट पर्सन, लाइक उसको आप बोलते हो लिक्विडेटर अपॉइंट करोगे, तो लिक्विडेटर की सैलरी देनी होगी. एग्जांपल समझ में आ रहा है. यू विल सेल द एसेट, उससे एसेट सेल करने के लिए मे बी आप ऑक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करोगे, आप एडवर्टाइज करोगे. फर्म हैज टू इंकर दोस एक्सपेंसेस. तो उन एक्सपेंसेस के लिए ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनके लिए पार्टनर्स विल बी हेल्ड लायबल. आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, the authority of each partner to bind the firm and other mutual rights and obligations of the partners continues as far as, right, so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm. कौन से actions के लिए they are liable? All those actions which are necessary to wind up the affairs of the firm and to complete all those transactions which began but were unfinished at the time of dissolution. मतलब सब वो transactions डेट ऑफ डिसोल्यूशन पे जो भी ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है
उनको कंप्लीट करने के लिए एंड वाइंड अप कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्शंस ली जाएगी, उन एक्शंस के लिए पार्टनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर, लायबल टुवर्ड्स ईच अदर। भले ही फिर आपने पब्लिक नोटिस क्यों ना दी होगी, ये ट्रांजैक्शंस फर्म के ही हैं, इनके सिवा फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती। आगे क्या लिखा है, द फर्म इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इन द अबव टू केसेस। इनका मानना है अगर कोई इंसॉल्वेंट, हमने क्या बोला है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की राइट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर is not liable to the acts of the firm or acts of the other partner. At the same time, firm is also not liable for the acts of the insolvent partner. दोनों तरीके से, once you are insolvent, court has adjudicated as an insolvent, that order itself is like a public notice. And if insolvent partners acts and someone in good faith enters into transaction with him, firm is not responsible. Firm बोलेगी insolvent है, कोर्ट ने बोला था you have entered into transaction with him, we are not liable, firm will not be held liable. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, insolvent partner is not liable towards firm, at the same time firm is also not liable towards actions of the insolvent partner. But if a partner, ध्यान देना, but if a partner represents himself or knowingly permits himself to be represented as a partner of insolvent partner, the firm is liable on the ground of holding out. इसका मतलब क्या है ये समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, राइट। सपोज फर्म थी, ABC वर द पार्टनर्स, X इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। B became insolvent, B became insolvent. Now B enters into transaction with X. B purchases goods from X. Now will A and C will be held liable towards X? No, because after insolvency A and C are not liable for the actions of the insolvent partner. और उल्टा देखते हैं, मतलब एक बोला इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के एक्शन के लिए फर्म लायबल नहीं, एग्जांपल लिया, बी इंसॉल्वेंट पार्टनर परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, later on B being insolvent cannot pay to X. Now X files case against A and C to recover that amount. A and C are not liable because firm is not liable for the actions of the insolvent partner after his insolvency. अब उल्टा करते हैं, A and C purchase the goods, ऐसे समझो, A and C purchase goods from from X. इन दोनों ने किससे गुड्स परचेस किए? X से. And A and C does not pay to whom? X. Now X wants to recover that amount from even B. AC तो करेगा ही करेगा, वो बोलता है B भी तुम पार्टनर था, B is insolvent. Can X claim or can X file a case against B? No, because insolvent partner is also not liable for the actions of other partners after his insolvency. So A and C B के लिए liable नहीं है और B भी A and C के liable नहीं है. I don't understand. कल जाके अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। Mr. B, who is the insolvent partner, holds out himself as a partner of ANC. Actually, he is not a partner because once you are declared insolvent, you ceases to be in partner from that date. And कुछ दिनों के बाद B enters into transaction with X, holding out that he is a partner of ANC. In good faith, X supplied goods to B, and B failed to make the payment. Now X wants to hold A and C, right, liable. वो बोलता है कि you are his partner. A and C बोलते हैं वो हमारा पार्टनर कब का होना बन चुका था, जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हुआ था उसी दिन, राइट, वो हमारा पार्टनर नहीं है. A and C are not liable, and even A and C, right, did like A and C ने भी कोई ऐसे होल्डिंग आउट नहीं किया कि हमारा पार्टनर है. मैं क्या बोल रहा हूँ, A and C are not liable for the acts of the B, और ना ही B A and C के liable है. However क्या होता है, try to understand. A and C let B to be represented as their partner. A and C, X
बी एक से गुड परचेस कर रहा है एंड ए एंड सी allow him to be represented as their partner. In that case, A and C will be held as a partner by holding out. Because A and C ने B को allow किया कि go and show that you are our partner. और even A and C को पता है कि B इंस्टॉलमेंट पार्टनर उसको उनका पार्टनर बोल रहा है. तो in that case, X if enters into good faith, they will be held liable. तो वही लिखा है उन्होंने. ठीक से पढ़ो क्या लिखा है. Right. The firm is not liable for the acts of the insolvent partner. अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर कोई एक्ट करता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स लायबल नहीं है. बट इफ ए पार्टनर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और knowingly permits himself to be represented as a partner of insolvent partner, the firm is liable on holding out. अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर का पार्टनर है ऐसे बोल के कोई ट्रांजैक्शन करता है and X in belief that ki B is their partner gives credit to the firm will be held liable. Then next is settlement of the accounts. ठीक है, settlement of the accounts. ये हमने 12th में भी थोड़ा फार सीखा है और हमें और समझना है. फर्म जब डिसॉल्व होती है तो वी सेल द एसेट्स एंड वी पे ऑफ द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज एसेट सेल हो जाएंगे और लायबिलिटीज पेमेंट का एक सीक्वेंस होता है. पहले थर्ड पार्टीज का पेमेंट हो जाएगा. यहाँ पे सीक्वेंस दिया देखो. राइट. एप्लीकेशन ऑफ द एसेट, जब एसेट सेल होंगे तो उसका पेमेंट कैसे होगा, किसके लिए पेमेंट किया जाएगा वो हमें समझना है. द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप द डिफिशियंसीज ऑफ द कैपिटल. इफ राइट, थर्ड पार्टीज को पेमेंट करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो पार्टनर्स विल हैव टू ब्रिंग द लाइक कैश. सिंपल वर्ड्स में अगर हमें लायबिलिटीज को पे करना है, हमारे पास जो जो रिसोर्सेस है, कैश इन हैंड प्लस एसेट सेल करोगे तो उससे जो पैसा आएगा एसेट्स रियलाइज, वो सब पैसा कैसे पेमेंट किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा. राइट. शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर. ये ऑर्डर फिक्स्ड है, किस सीक्वेंस में पेमेंट होगा. सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज. सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाएगा, थर्ड पार्टीज को किया जाएगा. लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन. समझ में आ रहा है. राइट. इन सब का पेमेंट किया जाएगा. एम्प्लॉय सैलरी पेएबल, टैक्सेस पेएबल. राइट. ये सब थर्ड पार्टीज है. सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, थर्ड पार्टीज का पेमेंट होगा. अगर कैश बचेगी तो किसका पेमेंट होगा, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा. तो वही लिखा है, इन पेइंग राइट टू ईच पार्टनर रेटिबली राइट व्हाट इज ड्यू टू हिम from the firm for the advances distinguished from the capital. Advances distinguished from the capital, इसका मतलब right loans given by the partner, loans from partner. So हमारे पास जो कैश अवेलेबल है हम उसको कैसे यूज करेंगे. फर्म जब डिसॉल्व होती है, हमने 12th में इतना सोचा नहीं था बिकॉज हमारे ऑलमोस्ट हर केस में हमारे पास सफिशिएंट कैश होती थी. बट देयर इज अ सीक्वेंस इन विच वी शुड मेक द पेमेंट. सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, थर्ड पार्टीज का पेमेंट होगा. उसके बाद किसका पेमेंट होगा, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा. अगर कैश बचेगी तो किसके लिए पेमेंट होगा, कैपिटल के लिए पेमेंट होगा. राइट. इफ देयर इज अ बैलेंस इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिबली राइट व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल. और फिर किसका पेमेंट होगा, कैपिटल का पेमेंट होगा. उसके बाद भी अगर कैश बचती, कैपिटल पे होने के बाद बचेगी, उसको सरप्लस बोला जाएगा. सबका पेमेंट हो गया, थर्ड पार्टीज का पेमेंट हो गया, पार्टनर्स के लोन का पेमेंट हो गया एंड उसके बाद कैपिटल का भी पेमेंट होने के बाद भी अगर कैश बचती है, दैट सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स ओनली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द रेसिड्यू इफ एनी shall be divided among the partners in the proportion in which they were entitled to share the profits. एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ध्यान देना. ठीक है. सो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे समझाने के लिए खाली. सो लेट मी चेक. ओके ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, देखते हैं क्या है. सपोज दिस इज बैलेंस शीट, तो जल्दी क्लिक होगा. दिस इज बैलेंस शीट. ठीक है. कैपिटल्स, सबके कैपिटल्स मिलके. ठीक है, मैं एक ही साथ लिख रहा हूं, अलग अलग नहीं लिख रहा हूं. कैपिटल्स या सपोज ए एंड बी है, इसका कैपिटल
डिसाइड करते हैं। फिर लोन है, मिस्टर ए का लोन है, लोन फ्रॉम ए, ठीक है। फिर थर्ड पार्टीज, इसमें आपके क्रेडिटर्स वगैरह सब आ गए, थर्ड पार्टीज, एंड दीज आर योर एसेट्स, एंड सपोज दिस इज अ कैश, मैं जानबूझ के कैश रख रहा हूं अलग से, ठीक है। ये बैलेंस शीट रहेगी आपकी। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। सपोज इनके कैपिटल 20,000 एंड 10,000 है, ठीक है। इसका लोन एग्जांपल 5,000 का है। कितना हो गया अभी तक, 35,000 हो गया। मुझे सपोज 1 लाख करना है, तो मुझे ये कितना लेना होगा, 65,000 की लाइबिलिटीज है। हो गए 1 लाख, यस। सपोज कैश बैलेंस हमारे पास 10,000 है, एंड बाकी एसेट्स फिर कितनी होनी चाहिए, 90,000 होनी चाहिए, बराबर। तो ये हमारी बैलेंस शीट क्या होगी, टैली होगी। दिस इज बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन। नाउ आई विल सेल दीज एसेट्स। सपोज इस एसेट से मुझे ओवरऑल एग्जांपल ऐसे मान के चलो 1,50,000 मिले, बराबर। मेरे पास 10,000 ऑलरेडी है, मेरे पास टोटल कितनी कैश आ गई, टोटल कैश आ गई 1,60,000। मेरे पास टोटल 1,60,000 है अवेलेबल, और मुझे पेमेंट कितना करना है, 1 लाख का ही पेमेंट करना है। 90,000 की असेट्स आर सोल्ड एट 1,50,000, आप उसको बोलते हो कि प्रॉफिट हो गया। सो हमारे पास 1,50,000 है कैश, प्लस 10,000 कैश इन हैंड है, सो टोटल कैश इज 1,60,000। हमें पेमेंट कैसे करेंगे, इस 1,60,000 में से सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे 65,000 का, क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसमें से पार्टनर के लोन 5,000 का पेमेंट होगा। टोटल कितने का पेमेंट हुआ अभी तक, 70,000 का पेमेंट होगा। 1,60,000 से 70 गया, तो कितना बैलेंस है, बैलेंस बाकी है 90,000। ये 90,000 किसके लिए यूज किया जाएगा, फिर हम कैपिटल रिपे करेंगे। दोनों का मिला के कैपिटल 30,000 है। अभी भी कितना बाकी है, 60। नाउ दिस इज कॉल्ड एज सरप्लस, इसको हम बोलेंगे सरप्लस है। सबका पेमेंट होने के बाद जो बचा है वो सरप्लस है। हम अकाउंट्स में एक्चुअली ऐसे नहीं करते, हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें हमें सरप्लस वगैरह पता चलता है। मैं लॉ में मैं कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान देना। हमारे पास टोटल 1,60,000 की कैश आई थी, उसमें से सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा, थर्ड पार्टीज का। पूरा पेमेंट हो गया, यस। उसके बाद किसका पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स के लोन का, विच इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कैपिटल। एडवांसेस डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कैपिटल मतलब लोन्स। एंड उसके बाद किसका पेमेंट किया जाएगा, आप मुझे बोलो, राइट, कैपिटल का। सो टोटल हमें 1 लाख पे करना है, हमारे पास 1,60,000 कैपिटल है, तो सरप्लस कितना आ गया, 60,000। ये सरप्लस किसका रहेगा, ऑब्वियसली दिस सरप्लस इज ऑफ ए एंड बी ओनली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो 60,000 जो बचा है, जो एक्सेस बचा है, सरप्लस जो बचा है, 30,000 ए को जाएगा, बी को 30,000 जाएगा, मतलब ए को उसका 20 तो मिला ही मिला, प्लस उसका लोन भी मिला 5,000, उसके बियॉन्ड उसको 30,000 भी मिले। बी को उसका 10,000 तो मिला मिला, उसके बियॉन्ड उसको 30,000 मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वही बोल रहे हैं कि हाउ द एसेट्स 1,60,000 के जो एसेट्स रियलाइज हुए हैं ओवरऑल, इसको कैसे पेमेंट किया जाएगा। दे विल बी अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, देन टुवर्ड्स पार्टनर्स लोन, देन 3 कैपिटल। इसका मतलब सब पेमेंट हो गया। एंड अगर सब पेमेंट होने के बाद अगर बचता है, दैट विल ऑब्वियसली किसको जाएगा, पार्टनर्स को ही जाएगा। हम अकाउंट्स में करते टाइम हमारा कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट टैली होता था, अगर याद रहेगा तो। कैपिटल में जो बैलेंस आता था हम कैश में डालते थे, कैश अकाउंट टैली होता था इन योर 12th। मतलब जो एक्स्ट्रा बचता था पार्टनर में ही जाता था, समझ में आ रहा है। सो दिस इज अ प्रोसेस हाउ टू अप्लाई असेट्स इन द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। क्या ऑर्डर है, सबसे पहले थर्ड पार्टीज का पेमेंट होगा, उसके बाद पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा, फिर कैपिटल का पेमेंट होगा, एंड अगर इसके बाद अगर कैश बचेगी तो पार्टनर्स में ही जाएगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हमारे पास कैश कम पड़ती तो क्या होता है, एग्जांपल हमें टोटल 1 लाख पे करना है, ऐसे मान के चलो दूसरा, राइट, मैं यही बैलेंस शीट कॉपी करता हूं नीचे। अगर एक्सेस से तो कभी प्रॉब्लम नहीं आता, एक्स्ट्रा पैसा है तो पेमेंट का कोई कभी टेंशन नहीं। आगे देखते हैं। अब दूसरा देखो, सपोज ऐसे मान के चलो कि इससे हमें, राइट, इससे हमें सपोज कितने मिले, आई विल एज्यूम सपोज 70, यस, इससे हमें 70,000 मिले।
90,000 के एसेट के बदले हमें 70 मिले एंड हमारे पास 10,000 ऑलरेडी अपने पास 10,000 थे, तो टोटल हमारे पास कितने एसेट्स अवेलेबल है? 80,000 के एसेट्स कैश में है, बैंक बैलेंस है, ऐसे समझ के चलो। तो सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा? क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टीज का पेमेंट किया जाएगा। अभी भी कितना बाकी है? अभी भी बाकी है 15,000। 15,000 में से किसका पेमेंट होगा? पार्टनर के लोन का होगा 5,000। अब कितना पेमेंट बाकी, कितना पैसा बाकी है? 10,000। अब ये जो 10,000 बाकी है, टेल मी, इज इट सफिशिएंट टू पे 30,000? इज इट सफिशिएंट टू पे 30,000? नो। सो मुझे कैपिटल देना है 30,000 और मेरे पास कैश है ओनली 10,000। तो कितना कितना लॉस हुआ? कितना लॉस? लॉस नहीं बोल सकता मैं, पार्टनर का लॉस है, फर्म का नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल से राइट, पार्टनर को कितना कम मिलेगा? 20,000। देखो हमारे पास 10,000 ही कैश है, हमारे पास 10,000 ही कैश है एंड पेमेंट करना है दोनों को मिला के 30,000। अब किसको कितना देना चाहिए? हम 12th में देखते थे, जो भी अवेलेबल रहता था हम उनको उनके पीएसआर में देते थे। तो जो 10,000 है हम उनको पीएसआर में देंगे। पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट दिस 10,000 विल बी गिवन टू ए एंड बी इन देयर पीएसआर। उनका कैपिटल रेशियो 2:1 है, पीएसआर इक्वल है, तो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 5,000। एक्चुअली ए को, ए का कैपिटल 20,000 था, बी का कैपिटल 10,000 था। इसमें लॉस किसका कितना हुआ? ए का लॉस हुआ 15,000 का, बिकॉज ए को चाहिए थे 20,000 कैपिटल के लिए बट मिले 5,000। तो ए का लॉस हुआ 15,000, बी का लॉस कितना हुआ? 5,000। उसको 10,000 चाहिए थे, 10,000 में से उसको 5,000 मिले। दिस 20,000 इज कॉल्ड एज कैपिटल डिफिशियंसी। इसको बोला जाता है डिफिशियंसी, राइट। ये हम 20,000 पे नहीं कर पाए, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द फर्म। हम पार्टनर्स को उनका पूरा पे नहीं कर पाए, 20,000 की डेफिशिएंसी आ गई। या उसको शॉर्टकट ऐसे निकाल सकते हो, हमें टोटल 1,00,000 पे करने हैं। टोटल कितने पे करने? 1,00,000। लायबिलिटी की टोटल देखो 1,00,000, और हमारे पास कैश कितनी है? टोटल टोटल कैश हमारे पास 80,000 थी। आप बोल सकते हो 80,000 से हम 1,00,000 नहीं पे कर सकते, तो डेफिशिएंसी कितनी है हमारी? 20,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारी डेफिशिएंसी कितनी है? 20,000। तो हमने थर्ड पार्टीज का पूरा पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर्स को 65 मिल गए, पार्टनर का लोन रिपे हो गया। उसके बाद जो बचा है वो पार्टनर्स में बच जाएगा। अगर एक्स्ट्रा बचता है तो पीएसआर में उनको मिल जाएगा। अगर इट इज नॉट सफिशिएंट तो जो भी लॉस है उनका, कितना लॉस है उनका? पार्टनर ए का लॉस होने वाला है 15,000, पार्टनर बी का लॉस होने वाला है 5,000। दे कैन नॉट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनको उतना नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो 20,000 हम पे नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 20,000 जो पे नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको किस रेशियो में दे रहे हैं? उनके रेशियो में दे रहे हैं, राइट। इसको 10,000, इसको 10,000 का लॉस लेना पड़ेगा, लाइक दैट। सो राइट, आई सिंपली मीन, राइट, आई सिंपली मीन कि अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश है तो टेंशन नहीं है, बट अगर सफिशिएंट कैश नहीं है तो थर्ड पार्टीज का पहले पेमेंट कर दो, पार्टनर के लोन का पेमेंट कर दो, अगर जो भी कैश है फिर पार्टनर में बच जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा नेक्स्ट। यहाँ पे एक सेकंड। सो हमारे पास 10,000 बाकी थे। कितने बाकी थे? 10,000। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास 10,000 बाकी थे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ध्यान देना। 10,000, जो 10,000 बाकी है हमें पे करना है कितना? बोलो 20 प्लस 10, 30,000 पे करना है। हमारे पास 10,000 ही है, तो कितनी डेफिशिएंसी आ गई? 20,000 की डेफिशिएंसी आ गई। दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। ए को लॉस लेना पड़ेगा 10,000, बी को लॉस लेना पड़ेगा 10,000। ए का लॉस होगा 10,000, बी का लॉस होगा 10,000, मतलब ए को टोटल पे करना है और बी को, ए को कितना पे करना है? 20,000, उसका कैपिटल 20,000 था, बी को 10,000। तो ए को लेना है 10,000 का लॉस, बी को लेना है 10,000 का लॉस। तो इसके बाद ए का कैपिटल बचेगा 10,000, बी का कैपिटल बचेगा 0। मतलब इस 10,000 में से 10,000 किसको जाएंगे? ए को जाएंगे, बी को कुछ जाएगा क्या? नहीं। इसको नहीं पीएसआर में बांटना है, दैट इज रॉन्ग।
किसको बांटना है, जो लॉस है ना उसको बांटना है पीएसआर में, तो टू दैट एक्सटेंट उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड जो भी कैपिटल बचेगा वो बटेगा, मतलब 10,000 किसको जाएगा, ए को जाएगा, बी को कुछ नहीं जाएगा इन दिस एग्जांपल। इसको बहुत लोग इसको बांटते हैं, दैट इज रॉन्ग। जो मैंने दिखाया था कि 10,000 5,000 बांटना है, वैसे नहीं बांटना है, दैट इज रॉन्ग। कैसे बांटना है, ढूंढो पहले डेफिशिएंसी क्या है, कितना लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 10,000 सॉरी 20,000 का, बिकॉज हमारे पास असेट 80,000 है, टोटल लाइबिलिटीज 1 लाख है, पार्टनर्स को 20,000 नहीं मिलेगा, सबसे एंड में पार्टनर का पेमेंट होगा, जो 20,000 नहीं मिलेगा वो उनको उनके पीएसआर में लेना पड़ेगा। दिस इज एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेज whatever is a deficiency is to be borne by the partners in their profit sharing ratio. There is another case, Garner versus Murray case, ये बहुत फेमस केस है, ये गार्नर वर्सेस मरे केस है, मैंने आपके मूडज में नहीं देखा, राइट, बट ये केस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू दैट दिस डेफिशिएंसी, हमारे पास टोटल कितने एसेट्स थे, हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज 1 लाख थे, हमारे पास कैश 80,000 थी, तो 20,000 हम पे नहीं कर फर्म कैन नॉट पे 20,000, तो ये फर्म की डेफिशिएंसी आ गई। दिस डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय पार्टनर्स ए एंड बी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा रेशियो लेता है, देयर पीएसआर, जो मैंने इक्वल माना है। एंड गार्नियर वर्सेस मरे केस में कोर्ट ने अनाउंस किया था कि दिस लॉस विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो व्हिच इज 2:1। उनका कैपिटल रेशियो क्या था, 2:1। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेज जो पार्टनर को नहीं मिलने वाला है, इट इज देयर लॉस, जो पार्टनर को नहीं मिलने वाला है, दैट इज देयर डेफिशिएंसी, दैट डेफिशिएंसी व्हिच इज 20,000 विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन देयर पीएसआर, इक्वली नहीं, इन देयर पीएसआर। मेरे एग्जांपल में पीएसआर इक्वल था। गार्नियर वर्सेस मरे केस बोलता है कि ये जो डेफिशिएंसी होगी वो पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे, उनका कैपिटल रेशियो में करेंगे। समझ में आ रहा है, इसका मतलब 20,000 इन 2:1 में शेयर होगा, तो एक का कुछ तो आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ तो 2:1 में अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो भी लॉस आएगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर भी नहीं है, लेट मी चेक, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आपको क्लिक हो जाएगा। और ये आपके इसमें भी है, किसमें, एफआई के अकाउंट्स में भी ये चैप्टर है, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये गार्नर वर्सेस मरे केस पे एग्जांपल्स है, डिवाइड बाय 3, तो इसका लॉस रहेगा 6667 एंड इसका रहेगा 13,333। तो ए को कितना मिलेगा, ए का कैपिटल 20,000 था, बी का कैपिटल 10,000 था, जो लॉस हुआ है 20,000 दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर बट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, तो ए का लॉस हो जाएगा 13,333, बी का लॉस हो जाएगा 6,667। सो अगर आप देखते हो ओवरऑल, राइट, ए का बैलेंस कितना बचेगा, उसका कैपिटल 20,000 था ना, 20 में से उसको 13,333 का लॉस लेना पड़ा, तो उसका कितना बचेगा 6,667 एंड इसका बचेगा 3,333। सो जो 10,000 बचे थे, ये 10,000 ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 6,667, बी को मिलेगा 3,333। जैसे रेशियो चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मैं आपको क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि एक, मैं पहले बोल रहा हूं कि किस सीक्वेंस में हम पेमेंट करेंगे, राइट, किस सीक्वेंस में हम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, assets of the firm are utilized for the payment of third party liabilities, then partners loan, then partners capital, and अगर बचेगा वो surplus होगा, that will be distributed between the partners in their PSR. Firm's assets are not sufficient to pay off entire liabilities, मतलब I have 80,000 only, however my total liabilities are 1 lakh, means firm cannot pay total 1 lakh, जो पे नहीं कर पाएंगे, कितना पे नहीं कर पाते हम, 20,000 पे नहीं कर पाएंगे, that loss, that deficiency is borne by partners in their profit sharing ratio as per Indian Partnership Act or capital ratio as per, right, Garner versus Murray case. So उनको जो नहीं मिलेगा वो किस रेशियो में नहीं मिलेगा, ये मैं बात कर रहा हूँ। ए एंड बी को 20,000 नहीं मिलेगा, वो किस रेशियो में नहीं मिलेगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो उनके पीएसआर में, दैट इज गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट,
अगर वो उनको कैपिटल रेशियो में नहीं मिलेगा तो जिसका कैपिटल ज्यादा उसका लॉस ज्यादा, जिसका कैपिटल कम उसका लॉस कम, राइट? दैट इज एज पर गार्नेट वर्सेस मरे केस। क्लियर है? अगर ऐसे होता है, एक एग्जांपल, तो आप थर्ड पार्टीज पूरा पे कर रहे हो, आप थर्ड पार्टीज का लाइबिलिटी पूरा पे कर रहे थे, बिकॉज यू थर्ड पार्टीज को मिला के आपको 65,000 पे करने, इसको 5,000, टोटल 70 पे करने थे, आपके पास 80,000 कैश थी। थर्ड पार्टीज को पेमेंट करने के बाद भी आपके पास कैश थी, बट पार्टनर्स को पे करने के लिए पूरी कैश नहीं थी। इस एग्जांपल में क्या था, ये जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें हमारे पास सबका पेमेंट होने के बाद भी कैश बाकी थी। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया कि थर्ड पार्टीज का पेमेंट हो गया, कैश बची है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द कैपिटल्स। थर्ड एग्जांपल में यही एग्जांपल लेके कंटिन्यू कर रहा हूं, ध्यान देना। ऐसे हो सकता है क्या कि हमें क्रेडिटर्स का ही पेमेंट करने के लिए कैश ना रहे? हो सकता है, ध्यान देना। नाउ दिस इज द एग्जांपल, सॉरी, थर्ड एग्जांपल। सपोज हमें यहाँ से टोटल 70 क्रेडिटर्स का और लोन का कितना पेमेंट करना है, 70। सपोज यहाँ से हमें 50,000 ही मिले, हमारे एसेट 50,000 में सेल हो गए, हमारे पास 10,000 की कैश है, टोटल हमारे पास कितने रुपीज है, हमारे पास टोटल 60,000 है। हमें टोटल कितना पे करना है, 1 लाख पे करना है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, इनका 65,000 का पेमेंट करना है, किसका, क्रेडिटर्स का, बट हमारे पास 65,000 है ही नहीं, हमारे पास खाली कितनी है, 60 है। तो क्रेडिटर्स को ही पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, उनको खाली 60 मिलेगा, उनका ही 5,000 बाकी है, उनका ही 5,000 बाकी है। फिर पार्टनर के लोन 0 पेमेंट होगा, उसका 5,000 बाकी है। फर्म इज इंसॉल्वेंट इन दिस केस, फर्म इज इंसॉल्वेंट इन दिस केस। पहले दो केसेस में फर्म इंसॉल्वेंट नहीं थी, बिकॉज हम, राइट, पहले केस में तो सबका पेमेंट करने के बाद बचा था, इंसॉल्वेंसी का कोई सवाल नहीं। सेकंड केस में भले हम पार्टनर को पे नहीं कर पा रहे, बट थर्ड पार्टीज का पेमेंट पूरा हुआ था, हमने पूरे वो लोन एंड थर्ड पार्टी 70,000 पूरा पे किया था, तो फर्म इंसॉल्वेंट नहीं थी। थर्ड केस में फर्म इंसॉल्वेंट है, व्हाई? बिकॉज हम खाली थर्ड पार्टीज का पेमेंट भी पूरा नहीं कर पा रहे, हम क्रेडिटर्स का ही पेमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, हमें क्रेडिटर्स के लिए 5,000 चाहिए, फिर पार्टनर के लोन रिपे करने के लिए भी 5,000 चाहिए, तो हमारे हमें 10,000 वैसे भी कम है, पार्टनर का पेमेंट की बात ही अलग है। ऐसे केसेस में क्या होता है, पार्टनर्स आर सपोज टू कंट्रीब्यूट, पार्टनर्स को उनके पर्सनल एसेट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू पे ऑफ दिस 10,000। चलो हम पार्टनर का लोन रिपे नहीं करेंगे, सपोज उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, एटलीस्ट 5,000 तो लेके आना होगा, सो दैट फर्म एटलीस्ट थर्ड पार्टी का पूरा पेमेंट करे। इस केस में पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट बोला जाता है। सो हम ए को बोलेंगे, बी को बोलेंगे ब्रिंग्स कैश, हम उनको कैश लाने के लिए बोलेंगे 5,000, दोनों वो किस रेशियो में लाएंगे, राइट, वो उनके पीएसआर में लाएंगे। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। इन दिस एग्जांपल फर्म इंसॉल्वेंट है, तो क्या लिखा है, अब देखो प्रोविजन में क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ द असेट, सबसे पहले थर्ड पार्टीज, दूसरे सेकंड टाइम लोन फ्रॉम पार्टनर्स, फिर कैपिटल, अगर बचेगा, इफ एनी, अगर कुछ रेसिड्यू बचता है, राइट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। आगे क्या लिखा है देखो, इफ द असेट्स आर सफिशिएंट टू पे ऑफ 1 and 2 अबव, थर्ड पार्टीज का पूरा पेमेंट हो गया, पार्टनर के लोन का पेमेंट हो गया, उनका सबका पेमेंट हो गया, हमारे पास 80, एक केस 2 है, हमारे पास 80,000 थे, क्रेडिटर्स को 65 पे करना था, पार्टनर के लोन को 5,000 पे करना था, 70 पे करना था, यहाँ पे 65 पे करना था, स्टेप 2 में 5,000 पे करना था, और स्टेप 3 में 30,000 पे करना था, ऐसे हमें 1 लाख पे करने थे। ये दोनों का पूरा पेमेंट हो गया, 70,000 पे हो गए, वही लिखा है, इफ असेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1 and 2 अबव बट इनसफिशिएंट टू पे द पार्टनर्स कैपिटल इन फुल, हमारे पास 10,000 ही बाकी थे, पर कैपिटल देना था 30,000। क्या लिखा है, ध्यान देना, राइट, द डिफिशियंसी इन द कैपिटल, कितनी डिफिशियंसी थी, 30,000 कैपिटल पे करना है, हमारे पास 10,000 ही है, तो 20,000 की जो डेफिशिएंसी उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट, शैल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे आर इंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स। वही तो एग्जांपल 2 था मेरा, किधर गया एग्जांपल 2, देखो एग्जांपल 2 किधर गया, देखो यहाँ पे हमारे पास 10,000 कैश बाकी थी,
कैपिटल रिपे करना था 30,000, तो कितने की डिफिशियंसी थी? 20,000 की डिफिशियंसी थी। किधर है वो? हाँ, 20,000 की डिफिशियंसी थी। वो 20,000 की डिफिशियंसी मैंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की? देखो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की? ये जो 20,000 की डिफिशियंसी थी मैंने कौन से रेशियो में डाली? पीएसआर में डाली। मैंने 10,000 बाकी वो पीएसआर में नहीं डाला। जो हम उनको पे नहीं कर पाते, जो डिफिशियंसी, वो हम पीएसआर में डालेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यही उन्होंने लिखा है कि इफ, लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़ो, इफ द एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन फुल्ली, हाउएवर दे आर इनसफिशिएंट टू पे ऑफ कैपिटल इन फुल, तो हम कैपिटल पूरा पे नहीं कर पाएंगे। जितना पे नहीं कर पाएंगे वो हमारी डेफिशिएंसी है। दैट डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो राइट, गार्नियर वर्सेस मरे का रूल क्या बोलता है? आई विल डायरेक्टली कम टू द रूल, राइट। इन इफेक्ट द डिसीजन इन द गार्नियर वर्सेस मरे अमाउंट्स टू, एक्चुअली ये मॉड्यूल में नहीं है बट ये पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, द सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग इन कैश। एक्चुअली गार्नियर वर्सेस मरे केस कहां पे लगती है? इंसॉल्वेंसी में लगती है। इंसॉल्वेंसी में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो क्या होगा? हमने 12th में देखा था कि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका जो कैपिटल डेबिट बैलेंस बचता है, हम वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अगर याद रहेगा 12th में हम क्या करते थे? द डेबिट बैलेंस, राइट, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ the insolvent partner is to be borne by solvent partners in their PSR, ऐसे हम बोलते थे। That was as per Indian Partnership Act. As per right Garner versus Murray case, हम बोलते हैं right, when a partner is insolvent, his debit balance, because insolvent है, हमें उससे पैसे लेने हैं, try to understand, right, that debit balance in his capital account so गार्नियर वर्सेस मरे केस में खाली क्या डिफरेंस है? कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है दैट लॉस, उसका जो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा वो, दैट इज टू बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर पीएसआर। बराबर, उसका कैपिटल हम कैसे क्लोज करते थे? सॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल में उसका बैलेंस ट्रांसफर करते इन पीएसआर। गार्नियर वर्सेस मेरे केस में वो पीएसआर नहीं रहता, वो कैपिटल रेशियो रहता है। तो वही लिखा है, फर्स्ट द सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग कैश इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर, right, on the loss of realization. Solvent partners has to bring cash to pay off the third party liabilities. Second, the loss due to the insolvency of a partner should be divided among the other partners in the ratio of their capital, right? So 12th में हम पीएसआर में डालते थे। अगर वही क्वेश्चन अगर हम गार्नियर वर्सेस मरे केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हम वो लॉस किस रेशियो में डालेंगे? राइट, कैपिटल रेशियो में डालेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे बाइफर्केशन लिखता हूँ। गार्नियर वर्सेस मरे केस जितना मैंने देखा है मॉड्यूल में, मैं देख रहा था, मुझे कहाँ पे मिली नहीं, राइट, बट पता होना चाहिए इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ऑफ ए पार्टनर, राइट, द डेबिट बैलेंस standing to debit balance standing to the credit of his account, standing to the credit of his account, credit of his capital account, क्रेडिट नहीं होगा, उसका डेबिट होना चाहिए। क्रेडिट होगा तो हमें उसको पे करना है, तो उसके जो ऑफिशियल असाइनी है वो लेके जाएगा वो, राइट। देखो, पार्टनर इंस्टॉलमेंट होता है डज नॉट ऑलवेज मीन कि उसका कैपिटल निगेटिव होता है। मे बी उसका कैपिटल पॉजिटिव हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ में इंस्टॉलमेंट होगा, तो नाउ जो लिक्विडेटर है, जो ऑफिशियल असाइनी है, ही हैज अ राइट फॉर हिज शेयर इन द फर्म, वो कैपिटल लेके जाएगा। हमें उसके ऑफिशियल असाइनी को क्या करना होगा? कैपिटल देना पड़ेगा। बट अगर वो इंसॉल्वेंट है एंड उसका कैपिटल डेबिट बैलेंस है, मतलब फर्म को उसके कैपिटल उससे लेना है, उसके ऑफिशियल असाइनी से लेना है, हमें उसके कैपिटल से रिकवर करना है। अगर ऐसे है तो क्या करोगे? इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, द डेबिट
balance standing to the credit, right? Debit balance standing to the, right, to the capital of such partner is to be, right, borne by solvent partners in their profit sharing ratio. It is as per IPA 1932, or in their capital ratio. It is as per Garner वर्सेस मरे केस. सो इसमें रेशियो अलग दिया है. अगर मेरे पास कोई एग्जांपल है तो मैं आपको खाली दिखाऊंगा. लेट मी चेक. रहना चाहिए. ये हमने किया है तो जल्दी समझ में आ जाएगा. लेट मी चेक. ओके. इफ यू रिमेंबर वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट वगैरह ऐसे कोई क्वेश्चंस थे. सॉल्व वाला दिखा तो जल्दी क्लिक होगा आपको. हाँ, यहाँ पे देखो. ठीक है. यहाँ पे कहाँ पे तो इस क्वेश्चन में लिखा होगा. देखो. The deficiency of any partner in the capital account is to be made by other partners in their PSR. फर्म डिसॉल्व हो रही है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, एंड अगर उसके कैपिटल में कोई डेफिशिएंसी रहेगी, दैट विल बी मेड बाय द अदर पार्टनर्स इन देयर PSR. नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, राइट, एंड महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000. सो नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट. नरेंद्र का कैपिटल देखो. कौन इंसॉल्वेंट हुआ, क्या लिखा उन्होंने? नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड बिल ओनली 10,000. अच्छा. इसका कैपिटल 20,000 था, बराबर. फिर 20 लॉस ऑन रियलाइजेशन. ओके. देखो 67,500 का लॉस ऑन रियलाइजेशन था. 20,000 उसका कैपिटल था. तो उसके कैपिटल में डेबिट बैलेंस कितना बाकी है? 67,500 माइनस 20,000. उसके कैपिटल में बैलेंस बाकी कुछ तो 47,500. दिस बैलेंस इज टेकन ओवर बाय, देखो, द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ये जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से PSR में बट रहा है. बट अगर यही लॉस कैपिटल रेशियो में बढ़ता ना तो इसको हम बोलते हैं गार्नर वर्सेस मरे केस. दे विल नॉट आस्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट मैं डिफरेंस समझा रहा हूं. ठीक है. सो राइट, ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ असेट्स. ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ असेट्स. तो एप्लीकेशन में आपको क्या याद रखना है? सीक्वेंस. सबसे पहले थर्ड पार्टीज, फिर पार्टनर लोन, फिर पार्टनर कैपिटल, एंड अगर बचता है उसके बाद भी बचता है, मतलब फर्म इज प्रॉपरली सॉल्वेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी पार्टनर की डिफिशियंसी भी नहीं है, सबको पेमेंट हुआ है और उसके बाद बच रहा है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट अगर, राइट, थर्ड पार्टीज का पेमेंट होने के बाद अगर सफिशिएंट कैश नहीं है टू पे ऑफ कैपिटल इन फुल, तो पार्टनर्स को कुछ तो नहीं मिलेगा, थोड़ा पोर्शन नहीं मिलेगा. That will be their deficiency, and that deficiency will be shared in PSR as per Indian Partnership Act, or that will be shared in capital ratio as per Garner versus Murray case. आगे यही लिखा है. So आगे ये था सेटलमेंट. दूसरा है शेयरिंग ऑफ द डेफिशिएंसी. जो डेफिशिएंसी है पार्टनर की, राइट, डेफिशिएंसी कब आती है? व्हेन firm's assets are not sufficient to pay off the firm's liabilities, entire liabilities, third parties as well as capital. Like हमारे पास 80,000 ही कैश थी, ओवरऑल लाइबिलिटीज कितना पे करना था? 1,00,000. तो हम बोलेंगे फर्म की डेफिशिएंसी 20,000 है. फर्म कुड नॉट पे 20,000 टू द पार्टनर्स. तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है. इफ the assets of the firm are insufficient to discharge the debts and the liabilities of the firm, the partners shall bear the deficiency in the proportion in which they were sharing the profits. वो जो 20,000 कम पड़ रहा है
वो पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। किस रेशियो में झेलना पड़ेगा? उनके पीएसआर में झेलना पड़ेगा। Thus losses including deficiency of the capital shall be paid, right, first out of the accumulated profits. एक्चुअली अकाउंट्स में हम डायरेक्टली प्रॉफिट्स किस में डाल देते हैं? कैपिटल में डाल देते हैं। बट जो लॉस आएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितने का लॉस आ रहा था? जो 20,000 का लॉस था, पहले वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। देन आउट ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो पार्टनर्स विल ब्रिंग, मतलब ये थर्ड केस में जा रहे हो, मतलब फर्म इंसॉल्वेंट है। लास्टली इफ नेसेसरी by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share the profit. अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो पार्टनर्स विल ब्रिंग द रिमेनिंग अमाउंट, राइट, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये लास्ट के एग्जांपल में जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, लेट मी शो यू, जिसमें फर्म का मैंने इंसॉल्वेंसी का लिया था एग्जांपल। फर्म के पास खाली कितने रुपीस थे? फर्म के पास 50,000 असेट से आगे 10,000 कैश थी, 60,000 थे। फर्म को टोटल कितना पे करना है? 1 लाख पे करना है। तो डेफिशिएंसी कितनी, ध्यान देना, हमें पे करना है 1 लाख, हमारे पास 60,000 कैश है। फर्म की डेफिशिएंसी 40,000 है। फर्म की डेफिशिएंसी 40,000 है। तो ये 40,000 कैसे कंट्रीब्यूट होगा? वो कंट्रीब्यूट होगा कैपिटल प्रॉफिट के थ्रू। मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते थे वो उनको नहीं मिलेगा, वो रिटर्न नहीं किया जाएगा, कैश में रिटर्न नहीं होगा। सेकंड, उनका कैपिटल रिटर्न नहीं होगा। देखो उनका कैपिटल कितना है? टोटल 30,000 है। तो हम बोलेंगे जो 40,000 हमारे पास नहीं है, हमारे पास 40,000 नहीं है, तो हम आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं देंगे। पार्टनर्स को बोलेंगे हम आपको आपके कैपिटल्स रिटर्न नहीं करेंगे, मतलब उनको 30,000 नहीं मिलेगा। जो 40,000 नहीं है हमारे पास, वो किसको नहीं मिलेगा, ये मैं बात कर रहा हूं। फर्म बोल रही है हमें टोटल 1 लाख पे करना है। अरे अकाउंट्स में हम उल्टा करते हैं, हम ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। सपोज लॉ में उल्टा बोल रहे, थोड़ा अलग लैंग्वेज में बोल रहे। फर्म के पास 60,000 की कैश है, फर्म को पे करने 1 लाख, तो जो 40,000 फर्म पे नहीं कर पाएगी, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कितने हैं? 60, तो हम पहले क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे बोलते हैं। लॉ वैसे नहीं बोलता है। लॉ बोलता है किसको पेमेंट करना है इसकी बात नहीं कर रहा है। लॉ बोलता है किसको पेमेंट नहीं होगा, ये समझो। तो वो बोलता है हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे नहीं करेंगे, मतलब पार्टनर्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिटर्न नहीं मिलेंगे। दूसरा, उनका कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर वो भी कम पड़ता है, देखो हमारे पास 40,000 नहीं थे, तो हमने बोला आपको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे नहीं कुछ, आपको आपका कैपिटल नहीं मिलेगा, 30,000 नहीं मिलेगा आपको। तो अब कितना टोटल हम पे नहीं करेंगे? ये जो 40,000 का लॉस है उसमें से पार्टनर का लॉस हो गया 30,000, तो अभी भी 10,000 जो बाकी है पार्टनर को बोलेंगे आप लेके आ जाओ। क्यों लेके आ जाओ? बिकॉज इस 10,000 से हम अपने क्रेडिटर्स को 5,000 पे करेंगे एंड पार्टनर के लोन को 5,000 पे करेंगे। वो हमें सिंपल पता है कि हम कैसे पे करने वाले, यहाँ पे घुमा के बोल रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अकाउंट्स में हम बोलते हैं जो हमारे पास 60,000 है उसमें से हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे 60,000, उनका बैलेंस अभी भी बाकी है 5,000। पार्टनर्स के लोन को 0 पेमेंट होगा, उसका बैलेंस अभी भी 5,000 बाकी है। कैपिटल को 0 पेमेंट होगा, उनका कैपिटल 30,000 बाकी है। सो हो गया 60,000 का पेमेंट हो गया, अभी भी कितना बाकी है? 40,000। ऐसे हम लिखते हैं अकाउंट्स में। लॉ में उल्टा बोलते हैं। लॉ वाले क्या बोलते हैं, ध्यान देना, जो हम 40,000 पे नहीं करेंगे वो किसको पे नहीं करेंगे? वो बोलते हैं पहले कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा, एंड जो लॉस बाकी है कितना? 10,000, ये पार्टनर को लाना पड़ेगा। इन दिस केस फर्म इज इंसॉल्वेंट, तो इन दोनों, इसका 5,000 बाकी है, ये पेमेंट करना है, इसका 5,000 बाकी, ये पेमेंट करना है, तो इसके लिए पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा 10,000। पार्टनर्स विल ब्रिंग 10,000, विल पे 5,000 टू क्रेडिटर्स, विल पे 5,000 टुवर्ड्स लोन, तो किस्सा खत्म। तो ए बोल रहा है ए का कैपिटल 20,000 था, बी का कैपिटल 10,000 था, टोटल 30,000। इसके सिवा इसका तो कैपिटल है, प्लस हम उनको 10,000 लाने के लिए बोलेंगे।
उनका कैपिटल हो जाएगा 40,000, इनका कैपिटल 40,000, इस लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा, किस्सा खत्म। लॉ में थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं, अकाउंटिंग अलग ढंग से हो रही है, लॉ अलग बोल रहा है, बट दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है द लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी शैल बी पेड। 1 लाख पे करना है, हमारे पास 60,000 है, तो 40,000 जो नहीं मिल रहा है, किसी को तो नहीं मिलेगा ना 40,000, तो ये 40,000 कौन देगा, 40,000 का पेमेंट कैसे होगा, एक आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, पार्टनर ने उनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स फर्म को देने, बिकॉज फर्म कैन नॉट पे इट टू द पार्टनर्स, फिर कैपिटल पार्टनर्स ने देना है, एंड अगर वो भी कम पड़ता है तो पार्टनर्स हैज टू ब्रिंग ओवर एंड अबव दैट, दे हैव टू ब्रिंग फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। अकाउंट्स में हम उल्टा जाते हैं, राइट, हम 3-2-1 जाते हैं, यहाँ पे वो 1-2-3 कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि पेमेंट, वो जो बोल रहे पेड आउट ऑफ, एक्चुअली हम पेमेंट करते नहीं, हम उनसे लेते ही नहीं, हम एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे तुझे कैपिटल नहीं मिलेगा, तुझे प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, फिर भी कम पड़ रहा है तो तू कैश लेके आ जा, ऐसे हम अकाउंट्स में बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ द डेफिशिएंसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेफिशिएंसी इज 40,000, क्यों 40,000 है, डेफिशिएंसी कैसे निकालनी ये समझ लेना। डेफिशिएंसी इज टोटल लायबिलिटी टू बी पेड 1 लाख इंक्लूडिंग एवरीथिंग माइनस टोटल असेट्स अवेलेबल 60,000, टोटल डेफिशिएंसी 40,000 है, मतलब फर्म कैन नॉट पे 40,000 टू समवन, क्रेडिटर्स को नहीं पे करेंगे, लोन वाले को पे नहीं करेंगे, कैपिटल को पे नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं, तो उसका सीक्वेंस दिया, किसको पेमेंट नहीं मिलेगा, पार्टनर्स विल नॉट गेट प्रॉफिट्स, देयर आफ्टर पार्टनर्स विल नॉट गेट कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट्स एक्चुअली अकाउंट्स में हम कैपिटल में ऐड करते हैं, एंड पार्टनर्स विल हैव टू ब्रिंग रिमेनिंग, 40,000 कम पड़ रहे थे, तो पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, पार्टनर को उनका 30,000 नहीं मिलेगा, अभी भी कितना बाकी है 10,000, पार्टनर को ही बोलेंगे आप 10,000 लेके आ जाओ, एंड वो 10,000 हम किसके लिए यूज करेंगे, क्रेडिटर्स एंड पार्टनर्स के लोन के लिए यूज करेंगे। तो वही लिखा है, लास्टली इफ नेसेसरी by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share the profits. So this is the way the deficiency will be shared. 40,000 कैसे शेयर होगा, 30,000 कैपिटल हम रिटर्न नहीं करेंगे, एंड बियॉन्ड दैट, राइट, 10,000 उनसे ही लेंगे, एंड देन 40,000 का किस्सा खत्म हो जाएगा। लॉ में उल्टा बोला है, नथिंग एल्स। ये है आपके इंसॉल्वेंसी का, लाइक सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, क्या लिखा है ध्यान देना, सेटलमेंट्स में दो सिचुएशंस है, ये दो सेक्शंस है, सेक्शन 48 है एंड सेक्शन 49 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट शेयरिंग ऑफ द डेफिशिएंसी, सेक्शन 48 का सेक्शन सबसेक्शन ए टॉक्स अबाउट शेयरिंग ऑफ द डेफिशिएंसी, उसका सेक्शन बी टॉक्स अबाउट द सेटलमेंट, कैसे पेमेंट किया जाएगा। सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट द गुडविल, गुडविल को सेल कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टी, गुडविल ऑफ द फर्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, तो उसको आप सेपरेटली सेल कर सकते हो, अलॉन्ग विथ अदर एसेट सेल कर सकते हो, वही लिखा है उन्होंने, पढ़ो क्या लिखा है। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन, गुडविल शैल बी इंक्लूडेड इन द असेट्स, गुडविल शैल बी इंक्लूडेड इन द असेट्स एंड इट मे बी सोल्ड ईदर सेपरेटली और अलॉन्ग विथ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सो गुडविल कैन बी सोल्ड सेपरेटली और कैन बी सोल्ड अलॉन्ग विथ द अदर एसेट्स ऑफ द फर्म। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसके थ्रू मैं पूरे प्रोविजन समझाऊंगा, मैंने पहले बहुत सारे एग्जांपल दिए जिसमें मैं सब चीजें कंसीडर करता हूं, ध्यान देना। दिस इज योर बैलेंस शीट, क्या क्या है ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, 50,000 कैपिटल है, 40,000 कैपिटल है। देयर आर रिजर्व्स, मतलब प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 10,000। देयर आर क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टीज, ये अभी तक 1 लाख हुआ है, दे आर 1 लाख, या मैं थोड़ी अमाउंट अलग रखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 50,000, 50 बहुत कम हो जाएगा, आई विल टेक 1,50,000। टोटल असेट्स आर 2,50,000, बैलेंस लाइबिलिटीज आर 2,50,000, तो असेट भी 2,50,000 होनी चाहिए। माय कैश बैलेंस इज सपोज 50,000, so other assets should be कितने होने चाहिए,
अदर एसेट्स विल बी 2 lakhs. बैलेंस शीट टैली हो रही है. ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो. एग्जांपल इक्वल पार्टनर्स है वो. पीएसआर इक्वल है, कैपिटल रेशियो 5:4 है. मैं आपको 3 केसेस दूंगा, ध्यान देना. सपोज यू रिसीव, आपको टोटल कितनी लाइबिलिटीज पे करनी? 2,50,000. आपके पास अभी 50,000 कैश है, तो 2 लाख का टेंशन है. यू रिसीव्ड सपोज आउट ऑफ 2 lakhs के बदले आपको सपोज एग्जैक्टली 3 lakhs मिले. आपके पास खुद के पास 50,000 है, ये वाले. हमारे पास कैश कितनी है? 3,50,000 है. बराबर. अब कंपेयर करो विद द लाइबिलिटीज. कैश 3,50,000 है, लाइबिलिटीज कितना पे करना है? 2,50,000. कैन यू पे एंटायर लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल? यस सर, हम टोटल 2,50,000 पे कर सकते हैं लाइबिलिटीज. तो ये जो बच्चे का वो सरप्लस बोलेगा, इसको 1 लाख को क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे. मैं हर एक का मीनिंग समझा रहा हूं, ध्यान देना. दिस सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर पीएसआर. ए एंड बी को उनका कैपिटल रिपे तो होगा ही होगा, 50-40 मिलेंगे ही मिलेंगे. क्रेडिटर्स का पूरा 1,50,000 मिलेगा. रिजर्व एंड सरप्लस भी पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे. तो ए एंड बी को ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके कैपिटल प्लस रिजर्व के बाद भी एक्स्ट्रा मिलेगा 1 लाख इन देयर पीएसआर. ए को एक्स्ट्रा मिलेगा 50, बी को एक्स्ट्रा मिलेगा 50. दिस इज केस 1. केस 2 में क्या हो रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. केस 2 में सपोज इससे हमें मिले 1 लाख, इससे हमें मिले 1,20,000. हमारे पास कैश 50,000 है. टोटल हमारे पास कितना हो गया? 1,70,000. हमारे पास कैश 1,70,000 है. हमें टोटल कितना पे करना है? 2,50,000. हमें टोटल लाइबिलिटीज पे करनी है 2,50,000. हमारे पास कैश है 1,70,000. इसको बोला जाएगा डिफिशियंसी. कितना पे नहीं कर पाएगी फर्म? फर्म कैन नॉट पे 80,000. फर्म कैन नॉट पे 80,000. ये किसको 80,000 नहीं मिलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. रीपेमेंट का जो शेड्यूल है, पहले थर्ड पार्टीज, फिर लोन एंड फिर कैपिटल. डिफिशियंसी का उल्टा है. डिफिशियंसी में सबसे पहले पार्टनर को नहीं मिलेगा, फिर लोन वाले को नहीं मिलेगा, और फिर थर्ड पार्टीज को नहीं मिलेगा. अब हमारे पास 80,000 की डिफिशियंसी, इसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी. डिफिशियंसी इज टोटल लाइबिलिटीज. टोटल लाइबिलिटीज 2,50,000 माइनस टोटल असेट्स अवेलेबल 1,70,000. 80,000 डिफिशियंसी है. तो दिस डिफिशियंसी विल बी बोर्न बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो ए एंड बी लिख देखो. ए का कैपिटल 50 है, इसका कैपिटल 40 है. रिजर्व्स कितने हैं? रिजर्व्स 10,000 है. तो ए के इसमें रिजर्व्स ऐड हो जाएंगे 5,000 पीएसआर में. बी के इसमें 5,000 ऐड हो जाएंगे. तो ओवरऑल ए का कैपिटल हो गया 55,000, बी का कैपिटल हो गया 45,000. ये जो 80,000 डिफिशियंसी है, हम उनके कैपिटल से माइनस करेंगे. बोलेंगे हम आपको 40-40 पे नहीं कर पाएंगे पीएसआर में. तो ए को बोलेंगे तुझे खाली 15,000 पे कर पाएंगे. बी को बोलेंगे तुझे खाली 5,000 पे कर पाएंगे. हम टोटल 20,000 पे करेंगे. है क्या पॉसिबल 20,000 पे करना? कैसे? देखो, हमारे पास कैश कितनी थी? 1,70,000. हम क्रेडिटर्स को कितना पे करने वाले? 1,50,000. तो हमारे पास कैश कितनी बचेगी? 20. वो कैश हम किसको देंगे? ए को देंगे 15,000, बी को देंगे 5,000. उन्होंने ये नहीं बोला कि कैश कैसे बांटनी है, उन्होंने बोला डिफिशियंसी कैसे बांटनी है. तो डिफिशियंसी बांटने के बाद कैपिटल उतना ही बचेगा जितना उनके पास कैश है. 80,000 की डिफिशियंसी बांटने के बाद ए का कैपिटल 15 बच रहा है, बी का कैपिटल 5,000 बच रहा है, दोनों का कैपिटल 20 बच रहा है. वही तो वो बोल रहे हैं. सो वो जो 20,000 है वो कैसे बटेगा? ए को 15 दिया जाएगा, बी को 5,000 दिया जाएगा. किस्सा खत्म. इसमें फर्म इंस्टॉलमेंट नहीं है. क्यों फर्म इंस्टॉलमेंट नहीं है? बिकॉज वी कुड पे क्रेडिटर्स इन फुल. अब मैं तीसरी केस लेता हूं. ठीक है. सो ध्यान देना, उन्होंने क्या बोला था. उन्होंने लिखा था, राइट, मैं स्क्रीन एक बार फिर से शेयर करता हूं. उन्होंने लिखा था कि आप, इफ फर्म डिफिशियंसी में है तो वो डिफिशियंसी कौन बोन करेगा? पार्टनर्स बोन करेंगे. किस रेशियो में बोन करेंगे? इन देयर पीएसआर. मतलब पार्टनर्स को कैपिटल कम मिलेगा. या आप बोलो पार्टनर को कैपिटल कम मिलेगा, कोई बोल सकता है उनको रिजर्व्स नहीं मिलेंगे. क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज रिजर्व्स एट दिन किस में ऐड होने वाले? कैपिटल में ही ऐड होने वाले थे. सो राइट, एक सेकंड.
यस, शेयर हो गए केस, एक सेकंड। लॉ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होता है, घुमा फिरा के रहता है। अगर लॉ इतने इजी लोगों को समझ में आने लगा तो कोई भी करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड पर्पस क्या है ऐसे लैंग्वेज इतनी अलग यूज करने का। पर्पस सिंपल है कि राइट, वो जितना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा उतना राइट, कॉम्प्लिकेटेड रखने का ही पर्पस कुछ अलग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज में लॉ कभी नहीं होता है। वो ऐसे भी बोल सकते थे ना, जैसे हम 12th में मैथ्स में करते थे। आई डोंट नो, कुछ तो ये दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। हो गया स्क्रीन शेयर, एक सेकंड। सिंपल इसमें कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे रिजर्व्स ऐड किए थे, देखो। या आप ऐसे बोल सकते हो, इसको लॉ वाले ऐसे बोलते हैं, इसका कैपिटल 50 है, इसका कैपिटल 4000 है, बराबर। डेफिशिएंसी कितनी आई थी? 80,000 की। तो बोलते हैं 80,000 में से हम रिजर्व्स पे नहीं करेंगे, पार्टनर्स को रिजर्व्स नहीं मिलेंगे, तो 70 बाकी है। 70,000 में से फिर हम उनको उनके कैपिटल नहीं देंगे, कैपिटल तो 90 है, तो यहाँ पे फर्म इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही थी, 20,000 पार्टनर्स को नहीं मिलने वाला। मैं अब तीसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें फर्म इंसॉल्वेंट है। ऑब्वियसली डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी इन दैट केस। अब फर्म इंसॉल्वेंट कब होगी? जब हम 1,50,000 पे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास 1,50,000 से कैश कम होनी चाहिए। देखते हैं। सो मेरे पास पहले 50,000 है, सो आई विल से यहां से हमें 80,000 मिल गए, प्लस हमारे कैश पास 50,000 की कैश है। टोटल कितने हैं? 1,30,000। टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1,30,000 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास टोटल हो गया 1,30,000। हमें टोटल कितना पे करना है? अब हमारी डेफिशिएंसी कितनी होगी? हमें टोटल 2,50,000 पे करना है, माइनस 1,30,000 कैश अवेलेबल है, तो डेफिशिएंसी अब कितनी हो गई? डेफिशिएंसी इज 1,20,000। 1,20,000 डेफिशिएंसी है। तो हम पार्टनर को क्या बोलेंगे? आप आपका 1,00,000 मत ले लो, आपको 1,00,000 मिलने ही वाला नहीं है। इस 1,20,000 में आपका 1,00,000 नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? और जो उसके आगे है वो 20,000 यू हैव टू ब्रिंग, आपको कैश में लाना है। लॉ बोलता है ये जो 1,20,000 नहीं मिलेगा उसमें से 1,00,000 आपका है, तो पहले रिजर्व्स नहीं मिलेंगे आपको, फिर आपको आपका कैपिटल नहीं मिलेगा, तो टोटल 1,00,000 नहीं मिलेगा। वी कैन नॉट पे 1,20,000, तो 1,00,000 आपको नहीं मिलेगा। जो 20,000 है वो किसका रहेगा? थर्ड पार्टीज का रहेगा। तो लॉ बोलता है वो 20,000 लेके आ जाओ। 20,000 आप लाओगे, फिर हम इसको पे करेंगे, बिकॉज हमारे पास 1,30,000 है, प्लस आप 20 लाओगे, इसका पूरा पेमेंट हो जाएगा। जब आप 1,20,000 लाओगे, वो 20,000 आपको पीएसआर में लाना है, तो वो 20,000 लाएगा, तो ए लाएगा 10,000, बी लाएगा 10,000। तो ए का कैपिटल कितना हो गया? देखो ना, ए का कैपिटल हो गया 60, बी का कैपिटल हो गया 50 एंड रिजर्व 10। 50 प्लस सॉरी, इसका 60 प्लस 50, ए का कैपिटल 60 हो गया, बी का कैपिटल हो गया कितना? 50 एंड रिजर्व है 10,000। सो 1,20,000 विच इज इक्वल टू डेफिशिएंसी। लॉ घुमा के बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं। वो ये नहीं बोल रहा है कि जितना बाकी है उतना लेके आओ, वो नहीं बोल रहा है। बोल रहा है जितनी डेफिशिएंसी 1,20,000 उसमें से आपको रिजर्व्स नहीं मिलेंगे। तो अब कितने बाकी हो गए? राइट, 10,000, 1,10,000 बाकी है। 1,20,000 डेफिशिएंसी है, उसमें से आपको रिजर्व्स नहीं मिलेगा 10,000, फिर आपको आपका कैपिटल नहीं मिलेगा। राइट, मतलब आपका कैपिटल कितना आता है? वो 10,000 नहीं मिलेगा, प्लस आपका कैपिटल दोनों का मिला के 90 है, ओरिजिनल कैपिटल 90 है। सो 1,20,000 माइनस 10 रिजर्व्स नहीं मिलेंगे, फिर आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, 90 नहीं मिलेगा, सो टोटल आपको 1,00,000 नहीं मिलेगा, और जो बचेगा वो 20,000 आपको कैश में लेके आना है। तो वही यहाँ पे लिखा है, राइट, द डेफिशिएंसी। मेरी डेफिशिएंसी कितनी आई थी? 1,20,000 आई थी मेरे एग्जांपल में। विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। रिजर्व्स कितने? 10,000। 1,20,000 का सेट ऑफ कैसे होगा?
आपको आपके 10,000 नहीं मिलेंगे, फिर आपको आपका कैपिटल नहीं मिलेगा, सो ओवरऑल 1 लाख, और जो बाकी है 20,000 इफ नेसेसरी, राइट, बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन इन विच दे वर इंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, उनको 20,000 लेके आना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं लेकिन लॉ में अलग ढंग से बोल रहे हैं। सो इसमें आपको याद रखना है हाउ द डेफिशिएंसी विल बी शेयर्ड, फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ द कैपिटल, एंड अगर वो भी कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स को उतना कैश में लेके आना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एसेट्स, एप्लीकेशन का प्रोसीजर है थर्ड पार्टीज, फिर पार्टनर्स लोन, फिर कैपिटल, अगर वो बचेगा तो एक्स्ट्रा, जो अगर बचेगा तो पार्टनर्स में जाएगा, अगर कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स को वो लॉस लेना पड़ेगा, अगर उससे भी कम पड़ रहा है, कैपिटल से भी कम पड़ रहा है, थर्ड पार्टीज को ही कम पड़ रहा है, दैट इज टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर दिस। देन गार्नर वर्सेस मरे केस, राइट, इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड ये लास्ट वाला हमने देखा था, राइट, कि अगर पार्टनर की लाइबिलिटीज है, पर्सनल लाइबिलिटीज है, वो उसके कहां से पेड की जाएगी, उसके प्राइवेट एसेट से पेड की जाएगी। अगर प्राइवेट एसेट बचते हैं तो दैट विल बी यूज टू पे ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटीज। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी विल बी यूज टू पे ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटीज फर्स्ट, अगर बचते हैं तो पार्टनर्स के एसेट के लिए यूज किया जाएगा। ये वही लिखा है, एज रिगार्ड्स द सेटलमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड द प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर आउट ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी, रूल्स आर, उन्होंने रूल्स दिए सेटलमेंट के। Dates of the firm shall be paid first out of the property of the firm, and if surplus बचता है will be used to the partners. Private debts of the partners shall be paid first out of the private estate of the firm, private estate of the partners, and if there is any surplus and the liability of the firm exceeds the assets of the firm, it shall be utilized towards the payment of the debt of the firm. मतलब क्या? फर्स्ट केस देखो, property of the partnership will be used to pay off partnership liabilities. एंड अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट है तो पार्टनरशिप रिक्वायर्स कैश। अब वो कैश के लिए हम कहां पे जाएंगे, पार्टनर के पास जाएंगे, तो पार्टनर के असेट्स लेंगे। हम पार्टनर के कौन से असेट्स लेंगे, राइट, उसके लाइबिलिटीज पे करने के बाद अगर बचेगा तो लेंगे। दिस इज द रूल। सेकंड रूल क्या है, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है या पार्टनर के प्रॉपर्टीज उसके लाइबिलिटीज के लिए यूज की जाएगी, अगर बचता है एंड अगर फर्म को जरूरत है तो ही हम यूज करेंगे। वही लिखा है, प्राइवेट डेट्स ऑफ द पार्टनर शैल बी पेड, उसके पर्सनल डेट्स विल बी पेड आउट ऑफ हिज पर्सनल एस्टेट, एंड इफ देयर इज ए सरप्लस, अगर उसके पर्सनल लाइबिलिटीज पे करने के बाद उसके पर्सनल एस्टेट बचते हैं, मतलब देयर इज ए सरप्लस, दैट सरप्लस विल बी यूज्ड बाय द फर्म ओनली इफ फर्म इज इंसॉल्वेंट। फर्म को कैश की जरूरत होगी तो ही हम उससे मांगेंगे ना। तो वही लिखा है, इफ देयर इज एनी सरप्लस एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म एक्सीड द असेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के लाइबिलिटीज फर्म के असेट से ज्यादा है, मतलब फर्म इज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब है फर्म इज इंसॉल्वेंट, फर्म इज इंसॉल्वेंट, तो हम उसके लेंगे। नॉर्मली हम 11th-12th में बोलते थे कि अगर फर्म इंसॉल्वेंट है, फर्म इंसॉल्वेंट कब होती है, when firm's liabilities are more than firm's assets or firm's assets are insufficient to pay the liabilities, तो हम पार्टनर की असेट लेंगे, बट हम पार्टनर की पूरी असेट नहीं ले सकते। पहले उस असेट से उसके लाइबिलिटीज पे करो, अगर उसकी असेट बचती है तो ही हम यूज करेंगे, अदरवाइज अगर उसकी असेट्स कम पड़ रहे उसके लाइबिलिटीज के लिए तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। दैट इज द रूल। सो दिस इज रिगार्डिंग द सेटलमेंट। एक है सीक्वेंस ऑफ द लाइबिलिटीज का कैसे पेमेंट होगा, एंड दूसरा है जो डेफिशिएंसी बचती है वो डेफिशिएंसी कैसे बोन की जाएगी, कौन बोन करेगा, पार्टनर्स को ही बोन करनी पड़ती है। किस सीक्वेंस में वो उनको बोन करनी पड़ेगी, पहले उनको उनके रिजर्व्स नहीं मिलेंगे, उसके बाद उनको कैपिटल्स नहीं मिलेंगे, अगर वो भी कम पड़ रहा है तो दे हैव टू ब्रिंग कैश, मतलब वो कैश लाके गड्ढे में जाएंगे। समझ में आ रहा है, बिकॉज इन दैट केस फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है टू पे द थर्ड लाइबिलिटीज, तो उनसे कैश लेंगे। सो जो डेफिशिएंसी है दैट विल बी इक्वेटेड विथ रिजर्व्स, कैपिटल एंड एक्स्ट्रा ब्रॉट बाय द पार्टनर्स, इसके साथ वो मैच की जाएगी। एंड गुडविल विल बी सेल्ड टुगेदर विथ अदर एसेट्स और इट विल बी सोल्ड सेपरेटली। सो दैट इज एन लाइक द लॉ के प्रोविजन। ठीक है, सो आई सिंपली मीन, राइट, ये लॉ में अलग से लिखा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और ये यू विल लर्न मोर इन
कमिंग अकाउंट्स में आप और ठीक से समझोगे. लॉ में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बोला है, अकाउंट्स में हम एक सीक्वेंस में प्रॉपरली करते हैं. आई थिंक यहाँ पे लिक्विडेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है, राइट? सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स. तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, राइट? वहां पे एक दो क्वेश्चंस थे जो मैंने एड्रेस किए, जो भी चैट बॉक्स में थे, ठीक है? और कुछ इसमें आई डोंट थिंक सो कि जो कुछ कवर करना बाकी है. ये सब हुआ है. ऐसे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर एंड प्रोसीजर ऑफ द डिसोल्यूशन, सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है? कैसे सेटल किया जाएगा, सीक्वेंस. एंड डेफिशिएंसी इज इक्वल टू, कहां पे तो लिख के रखना, डेफिशिएंसी ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज ऑफ द फर्म माइनस टोटल असेट्स अवेलेबल टू पे ऑफ द लायबिलिटीज. वो जो डेफिशिएंसी है वो कैसे मेट की जाएगी, देयर इज अ सीक्वेंस. ये वाला सीक्वेंस उसके लिए एप्लीकेबल है. फर्स्ट, राइट, थ्रू द accumulated profits and losses, सेकंड आउट ऑफ कैपिटल. एंड अगर वो भी कम पड़ता है, इसका मतलब फर्म इंसॉल्वेंट है, तो पार्टनर से लेके, राइट, वो डेफिशिएंसी मिट की जाएगी. दैट इज द थिंग. सो ये सब है आपके सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स में. जो मैंने अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए, उसमें एंड में दो क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड, वो रीड कर लेना. उन्होंने एग्जांपल्स देके सॉल्व किए हैं, तो वो पढ़ लेना, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा. सो आई विल स्टॉप ऑन दिस नोट, राइट? अगर किसके डाउट्स है, यू कैन आस्क मी. इफ पॉसिबल आई विल प्रिपेयर सम क्वेश्चंस एंड आई विल शेयर विथ यू. मैं एक पीडीएफ कर दूंगा और आपके साथ वो क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? एक सेकंड मुझे पूछने दो. हाँ मैडम बोलो. यस प्लीज. ओके, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल शेयर सम क्वेश्चंस, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी इस पे. थैंक यू.